دیا کہ اس کا بنی ہاشم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب ہم بنی ہاشم کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ بنی ہاشم میں نہیں آتا، اس لیے کہ یہاں پر منزل فکر جو ہے وہ رشتہ داری اور خون کی نہیں ہے، اہلیت کی ہے. اس لیے تو اب رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ علی کی بھی اطاعت، اس لیے کہ ولی امر ہیں، اللہ نے بنایا، رسول نے اعلان کیا، رسول نے بنایا نہیں، اعلان کیا. اور یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اگر رسول اعلان کر دے تو بھی اطاعت کرو، اگر بنا دے اور مقرر کر دے تو بھی اطاعت کرو. اس لیے کہ رسول کا فعل جو ہے وہ اپنا فعل نہیں ہے، وہ تو اللہ کا فعل ہے. جو رسول کی گفتگو ہے وہ اپنی گفتگو رسول کی نہیں ہے، وہ تو خدا کی گفتگو ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ تو اپنے ہوائے نفس سے، اپنی مرضی سے کوئی گفتگو کرتا ہی نہیں، مگر جب تک کہ اس پر وحی نہ ہو. تو یہ معلوم ہو گیا کہ علی کی ولایت کا اعلان جو ہے بمطابق وحی ربانی ہے. تو جب تم اس وحی کا انکار کرو گے تو تم دین پر کیسے باقی ہو؟ اب سمجھ میں آیا کہ پھر آل عمران کی 32ویں آیت کہہ رہی ہے پکار پکار کر کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، اس لیے کہ جو اللہ کی اطاعت نہ کرے، اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے، وہ نگاہ ربانی میں راہ کفر پر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم علی کو ولی اللہ مانتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بنا لیا. نہیں، ہم نے نہیں بنایا، اس نے بنایا جس نے کائنات کو بنایا، جس نے انبیاء اور مرسلین کو بنایا. ہم تو ایسے ولی کو مانتے ہی نہیں، ایسے اولی الامر کو مانتے ہی نہیں، ایسے سید و سردار کو مانتے ہی نہیں جو اجماع سے بنایا گیا ہو. ہم ایسے کو نہیں مانتے جو شورا سے بنایا گیا ہو، اس لیے کہ شورا کا چورا جلدی نکل جاتا ہے، اجماع کئی حصوں میں بٹ جاتی ہے، لیکن جو ولایت الہی ہوتی ہے وہ قیامت تک باقی ہے. اور پھر اگر رسول کسی کی محبت میں کہہ دے کہ انا ولی من نور واحد تو یہ محبت ہی نہیں ہے بلکہ حکم الہی ہے. اے رسول کہہ دیجئے، اگر رسول یہ کہہ دے کہ لحم کا لحمی و دموں کا دمی تو یہ رسول نہیں کہہ رہا، اللہ کہلوا رہا ہے. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مقصد لحموں کا لحمی پہ کھلی ان کی زبان، مقصد لحموں کا لحمی پہ کھلی ان کی زبان. یہ تو ایک راہ سے تجھ کو بھی برا کہتے ہیں، تیرے اپنوں کا جو یہ حال ہو اے شافعی حشر، تیرے اپنوں کا جو یہ حال ہو اے شافعی حشر، میرے جیسوں کو تو کیا جانیے کیا کہتے ہیں. تو منزل فکر آگے بڑھتی رہنی چاہیے کہ ہم اللہ کے بھی اطاعت گزار ہوں، اس کے رسول کے بھی اطاعت گزار ہوں، اس کے ولی کے بھی اطاعت گزار ہوں. اور ایسے اطاعت گزار نہ ہو کہ آج اطاعت کر لی کل اطاعت سے خارج، نہیں، آج اطاعت کر لی کل اطاعت سے فارغ. اپنی مرضی سے اطاعت کر لی، اپنی مرضی سے اطاعت سے فارغ نہیں. جہاں اطاعت ہے وہاں اطاعت مطلقہ ہے، نہ شک کی گنجائش، نہ شبہ کی گنجائش، نہ تردد کی گنجائش. بس کہہ دیا، جو کہہ دیا وہ اٹل ہے، جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، اب قیامت تک اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. اس لیے کہ ہم جس کی اطاعت کا تمہیں حکم دے رہے ہیں اس کو ہم
तसर्रुफ दे रहे हैं, उसको इख्तियार दे रहे हैं। किस पर? कायनात पर तो है ही, तुम्हारी नफ्सों पर भी औला बिन नफ्स बनाकर भेज रहे हैं, औला बिन नफ्स बनाकर भेज रहे हैं। यानी तुम्हारे नफ्स, अब तुम्हारे नफ्स न रहे, वो मोमिन कि जो अल्लाह पर ईमान लाए, उसके रसूल पर ईमान लाए, उसके वली पर ईमान लाए, तो उसकी जान, उसका माल, उसकी औलाद, उसकी तमाम चीजें जो है उस पर तसर्रुफ उनका हो गया जिनकी इताअत का हुक्म दिया गया। तो अब अगर रसूल ये कह दे कि आज से ये ज़ौजा तुम्हारी ज़ौजा नहीं, तो खत्म हो गया रिश्ता। फिर सुनिए, अगर रसूल ये कह दे कि आज से ये तुम्हारी औलाद नहीं, तो ये औलाद तुम्हारी नहीं। आज से ये कह दे कि ये माल तुम्हारा हमारा है, तो तुम्हारा नहीं, ये रसूल का है। यानी वो तसर्रुफ कि जो तुमको तुम्हारी चीजों पर हासिल है, वही तसर्रुफ नबी को तुम्हारे चीजों पर हासिल है। वो तसर्रुफ जो तुमको तुम्हारे नफ्स पर हासिल है, वही तसर्रुफ नबी को तुम्हारे नफ्स पर हासिल है। ये कुरान की आयतें हैं जो मैं बयान कर रहा हूं। देखिए, आप अपनी जहन से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि जब चाहा इताअत कर लेंगे, जब चाहा कर लेंगे, जब चाहा न करेंगे। नहीं, यहाँ कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, देखो हमारे नबी की इताअत से रूगर्दानी न करना। फ़इन तवल्लो वइन कुंतुम तस्माऊन, हम जानते हैं कि तुम सुन रहे हो मगर रूगर्दानी कर रहे हो। हम तुम्हें बचाना चाहते हैं जहन्नुम की आग से, हम तुम्हें सेव करना चाहते हैं अपने अजाब से। तो अजाब से, अगर अजाब इलाही से बचना है तो अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, उसके उलिल अम्र। सुभान अल्लाह। फिर ये सूरह नज्म की जो आयत जो अभी आप खिदमत में पेश की कि जब परवरदिगार आलम ने कसम खाई, वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा, सितारे की कसम, तारे की कसम, जब वो टूटा तुम्हारा साहिब न भटका न गुमराह हुआ। वमा यंतिकु अनिल हवा, रसूल कौन? अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी, अल्लाह का महबूब। खुदा को ये बात नागवार गुजरी कि कोई उसके हबीब पर उंगली उठाए। कि जब मस्जिद में बैठे हैं, मस्जिद नबवी में, और एक मर्तबा देखा कि आसमान से तारा टूटा, रसूल ने फरमाया ये तारा देख रहे हो, ये तारा अली के घर में उतरेगा। तो कहने वालों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप तो अली की मोहब्बत में भटक गए हैं, गुमराह हो गए हैं। परवरदिगार को ये बात नागवार गुजरी, उसी वक्त जिब्रील को भेजा, जाओ जिब्रील, हमारे हबीब की जात पर कोई उंगली उठा रहा है, जाओ पहुंचा दो उनको ये पैगाम कि हमारा रसूल न भटका न गुमराह हुआ। वो तो अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं, अगर बोलता है तो वही रब्बानी के मुताबिक वही रब्बानी के मुताबिक बोलता है। तो अब अगर वही रसूल अली की जानशीनी का ऐलान करे, तो वो अली की जानशीनी का ऐलान रसूल अपनी हवाए नफ्स से नहीं कर रहा, दामाद को बुलंद नहीं कर रहा, विलायत इलाही को बुलंद कर रहा है। विलायत इलाही को बुलंद कर रहा है। और अगर ये कहे कि आज मैं उसको अलम दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फर्रार होगा। एक एक जुमले पर गौर कीजिए, एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए। ये रसूल कह रहा है, नहीं, ये रसूल नहीं कह रहा, ये अल्लाह कह रहा है। उसकी सनद यह है कि जब रसूल के कहने के बाद एक मर्तबा, एक मंजिल वो भी आई कि जिब्राईल आसमान से जंगे उहद में ये कहते हुए दिखाई दिए कि लाओ फताओ इल्ला अली, लाओ सैफ इल्ला जुल्फकार। तो रसूल बाद में कह रहे हैं, खुदा जंगे उहद में पहले कह चुका है कि कोई जवान नहीं अली जैसा, कोई तलवार नहीं जुल्फकार।
को अलम दूंगा जो मर्द होगा। असदुल्ला खान गालिब ने भी अपनी गजल के अपने दीवान की 5वीं गजल के पहला शेर जो है, शायद आपकी कुछ जहनों में महफूज हो, कुछ लोगों के लिए नया हो, तो फिर सुना देता हूँ। कि गालिब कहते हैं कि धमकी से मर गया जो नवाबे नबर्द था। गालिब गजल कह रहे हैं, शेर कह रहे हैं, निगाह मैदान खैबर में है। निगाह जो है वो खैबर की, और खैबर में हो क्या रहा है? खैबर में भी अजीब मंजर है साहब, कि 39 रोज हो गए जब मुसलमानों का लश्कर जाए, और मरहब का भाई हारिस, जिसके पास एक बड़ा सा गुर्ज था, वो जब घुमाता था तो मुसलमानों का लश्कर लौट आता था। तो अब ये निगाह गालिब की इस मंजर पर है, और ये शेर कि धमकी से मर गया जो नवाबे नबर्द था, यानी जो नबर्द आजमाई के काबिल न था वो तो धमकी से ही मर गया, जो लड़ने के काबिल न था। यहाँ तो मंजिल ये थी ना कि सरदार कहे कि हुजूर लश्कर भागा पहले, लश्कर कहे हुजूर सरदार पहले भागा, तो यहाँ कह रहे हैं कि धमकी से मर गया जो नवाबे नबर्द था, और इश्क़े नबर्द पेशा तलबगार मर्द था। तो रसूल अगर किसी को मर्द कह दे, अच्छा एक और बात भी है कि अगर परवरदिगार आलम चाहता तो ये खैबर में 40 रोज तक ये सब करने की क्या जरूरत थी? पहले ही दिन उन्हीं को बुला के अलम दे देते। भाई एक सोचने की मंजिल है कि भाई पहले ही दिन अली को बुला लेते, कहा कि हुजूर अली तो आशोब चश्म मुब्तला है। ये सब हिकमत इलाही है, हमारे आपके समझ नहीं। अच्छा कभी आपने देखा है कि जब तीर को कमान पे चलाया जाता है तो जितनी ताकत से पीछे की तरफ खींचा जाए उतनी ही पावर से वो उतनी ही फासले और उतनी ही बुलंदी पे जाके गिरता है। जंग बदर हुई, ओहद हुई, खंदक हुई, हर जंग में अली, हर जंग में अली, हर जंग में अली, सब मुसलमान शिकवा कर रहे हैं, हमें तो भेजा ही नहीं वरना हम होते फाते। 39 रोज तक अली को रोके रखा। इसका मतलब यह है कि यूं तो हर जंग में अली ने फतह कामरानी पहले ही दिन हासिल करके अपनी फजीलत का आलम बुलंद किया, मगर यहाँ कुदरत अली की फजीलत को मैदान खैबर में और बुलंद से बुलंद दिखाना चाहती थी। 39 रोज तक रोक के बताया कि देखो अब जब 40वें रोज अली आएगा तो खैबर भी फतह हो जाएगा, बरहब भी खत्म हो जाएगा, मालो मनाल भी मिलेगा, फतह कामयाबी भी मिलेगी। और फिर वो इताअत की मंजिल कि जब रसूल अली को भेज रहे हैं और एक मर्तबा घोड़े पे सवार करा दिया, चंद कदम आगे बढ़े, रुक कर पूछा या रसूल अल्लाह कब तक जंग करूं? मुसलमानों ने पूछा ना कि या रसूल अल्लाह अली ने बड़ी गुस्ताखी की, आपके खिदमत में आना चाहिए था, पीठ पीछे आपसे गुफ्तगू। अगर अली की इताअत समझ में आ जाती तो ये सवाल न करते। रसूल ने हुक्म दिया अली जाओ खैबर में। अब अगर अली के दिल में कोई सवाल आया है तो इताअत का तकाजा ये है कि जब तक फतह न हो जाए वापस नहीं पलटना है। सवाल दिल में आया, जवाब रिसालत में आपकी तरफ से। जब तक खैबर फतह न हो जाए उस वक्त तक जंग लड़ो। क्या कहने? साद बिन वकास ने अमीर माविया के दरबार में एक मर्तबा अमीर माविया ने बुलाया साद बिन वकास, साहब ये रसूल, कहा कि हमने सुना है कि तुम अली की फजीलत दिल में रखते हो और अली के लिए तबर्रा नहीं करते, आखिर क्या वजह है? साद बिन वकास कहते हैं कि यूं तो अली में बहुत सारी फजीलतें थी, मगर 3 फजीलतें ऐसी थी
तीन फजीलतें ऐसी हैं, मौला अली का दौर है, तीन फजीलतें ऐसी हैं कि अगर उनमें से मुझे एक भी मिल जाती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अली की तीन फजीलतें हैं, उनमें से अगर मुझे एक भी मिल जाती तो अगर मैं साहिब हुकूमत होता तो हुकूमत को उस फजीलत के आगे ठुकरा देता। अब आप समझे कि अली के एक फजीलत का वजन दुनिया की हुकूमत है। कहा कि कौन कौन सी? कहा कि पहली मंजिल कि जब रसूल यसरफ मदीने में अली को छोड़ के जाते हैं जंग तबूक पे, कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे जंग पे ना लेके जाएंगे? फरमाया कि ऐ अली घबराओ नहीं, तुम्हारी मिसाल मेरे नजदीक ऐसे ही है जैसे हारून की मूसा के। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जा रहा। एक ये फजीलत है। दूसरी फजीलत मंजिल मुबाहिला पर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रसूल इस्लाम ने ये फरमाया कि जब ईसाइयों से मुबाहिला हुआ तो मंजिले नफ्स पर अली को लेकर गए। ये एक फजीलत है। और तीसरी फजीलत ये है कि अगर खैबर में मुझको अलम मिल जाता, इसलिए कि रसूल ने फरमाया था मैं उसको भेज रहा हूं जिसे अल्लाह दोस्त रखता होगा और अल्लाह उसको दोस्त रखता होगा। जो अल्लाह को दोस्त रखता होगा और अल्लाह उसको दोस्त रखता होगा और अल्लाह उसको फतह देगा। तो ये वो तीन फजीलतें हैं। तो साद बिन वकास ने अली इब्न अबी तालिब की वो फजीलत बयान की। तो वो मंजिल कि जहां खैबर का मैदान था और मरहब का सर कलम होने के बाद खैबर को 2 उंगलियों से उखाड़ दिया। जब 2 उंगलियों से खैबर के दर को उखाड़ दिया तो एक मर्तबा खैबर के मैदान में एक चटियल पत्थर पर अलम को गाड़ा। मंजर मुसलमान देख रहे हैं। ये देखिए मैं दिखा रहा हूं कि मौला अली की जो फजीलत जंग खैबर में वाज़ेह हुई है वो दूसरी जंगों में इस तरह से वाज़ेह हुई। खैबर में क्या कहते हैं कि पत्थर पे अलम दीन का गाड़ा किसने, सुना? तो लोगों ने आके कहा कि यार ये कौन सी बड़ी कमाल की बात है। क्या मतलब? कि एक सितारा है जो 70,000 साल में गर्दिश करता है और जब ये इस मंजिल पर आता है तो पत्थर का दिल नरम हो जाता है। आपने जब अलम गाड़ा था तो ये वही वक्त था, ये वही साथ थी जब आपने अलम गाड़ा। तो इसमें आपकी कोई फजीलत नहीं। पूछा अच्छा ये बताओ अब ये सितारा दोबारा कब आएगा? कहा कि ये 70,000 साल बाद आएगा। मेरे मौला ने एक हाथ से कलम उखाड़ा दूसरे मकाम पर गाड़ दिया और बताया कि सितारे तुम्हारे मोहताज हो, हमारे मोहताज नहीं। हम सितारों के मोहताज नहीं है, हम उलिल अम्र हैं, ये अम्र हैं। अच्छा फिर 2 उंगलियों से बाब खैबर उखाड़ दिया। अब मुझे नहीं मालूम कि आपने इससे आगे सुना या नहीं सुना, शायद आपके लिए नई बात हो मगर बुजुर्गों के लिए तो पुरानी होगी। जंग खत्म हो गई। मुसलमानों के 40 या 50 लोगों ने आपस में बैठ के एक मीटिंग की और उसमें ये गुफ्तगू की कि अली ने आज जो कुछ भी कमालात दिखाए हैं ये एक आम इंसान के बस की बात नहीं, ये आम इंसान के बस की बात नहीं। और हमें ये महसूस हो रहा है कि अली ही हमारे अल्लाह हैं। ये बात आपने शायद नहीं सुनी। अली ही हमारे अल्लाह हैं। अच्छा क्या किया जाए?
کہہ ہم علی کے پاس چلتے ہیں اور علی سے جا کر ان کی الوہیت کا اقرار کر لیتے ہیں، کیونکہ نبی نے جو بتایا وہ تو بتایا، لیکن ایسا بتایا کہ دکھایا نہیں، مگر علی نے جو بتایا وہ دکھایا بھی بتایا بھی۔ یہ 2 انگلیوں سے خیبر کا در اکھاڑنا کسی معمولی آدمی کی بات نہیں، کسی عام انسان کے کام بس کا کام نہیں ہے، اور پھر علم کا گاڑنا اور پھر اس طرح سے لشکر کو اپنے ہاتھوں پر خندق کے اس پار سے اس پار، اس پار سے اس پار کرانا آسان نہیں۔ بس یہی اللہ، یہ 50 لوگ علی کی الوہیت کو دل میں لے کر خیمہ ابو طالب کے لال کی طرف چلے، علی ابن ابی طالب کے خیمے کی طرف چلے۔ اولی الامر اس کو نہیں کہتے جو پہلے سوال کرے اور پھر جواب دے، اولی الامر اس کو کہتے ہیں کہ جو سوال کرنے سے پہلے جواب دے۔ یہ 50 لوگ خیمے میں بیٹھے ہوئے مولا کائنات۔ اب یہ 50 لوگ جب خیمے کے نزدیک آئے تو ایک مرتبہ میرے مولا علی ابن ابی طالب نے قمبر سے کہا، زمین پہ بیٹھے ہوئے، فرش لگا ہوا، بیٹھے ہوئے، کھانا تناول کر رہے ہیں، جو کی روٹی اپنے زانوں سے نیچے دبا دیے اور ہاتھوں سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کی جگہ اب یہ منظر 50 لوگ دیکھ رہے ہیں کہ خیمے میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں میرے مولا، قمبر ذرا پانی کا جام لے آؤ، اس لیے کہ روٹی بہت سخت ہو گئی ہے، مجھ سے ٹوٹ نہیں رہی۔ آپ ذرا دل کی گہرائیوں سے سنیے گا اس کو، روٹی ٹوٹ نہیں رہی، قمبر ذرا پانی لے آؤ۔ قمبر پانی کا جام لاتے ہیں، کوزہ لے کر آتے ہیں، میرے مولا علی ابن ابی طالب روٹی کو پانی میں ڈالتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں، پھر توڑ کر اس کے لقمے کھاتے ہیں۔ اب یہ 50 لوگ ابھی سوال نہیں کیا، ابھی کچھ کہا نہیں، یہ منظر ان کی نگاہوں میں ہے۔ ایک مرتبہ دل میں شک پیدا ہو گیا، ارے یہ کیسا خدا ہے جو خیبر کا در تو اکھاڑ سکتا ہے مگر ایک ہاتھ کی روٹی نہیں توڑ پا رہا۔ ان کا بھائی یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر وہ 50 لوگ واپس پلٹے۔ جیسے ہی خیمے کے پاس سے وہ ہٹے، ایک مرتبہ میرے مولا علی سجدہ الہی میں جھک گئے، سجدہ الہی میں جھک گئے، اور سجدہ الہی میں جھکنے کے بعد میرے مولا نے کہا، اے میرے پروردگار گواہ رہنا، میں نے خود کو گھٹا گھٹا کے تیری توحید کا پرچم بلند کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو وہ خطبے پڑھتے ہی نہیں منبروں سے جو میرے مولا نے ارشاد فرمائے ہیں۔ یقین مانیے ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ یہ ہیں علی ابن ابی طالب، یہ ہیں علی ابن ابی طالب۔ نہیں معلوم مجھے کیا وقت ہو گیا ہوگا، درود بھیجو اللہم صلی علی محمد انشاءاللہ گفتگو کو یہاں سے سمیٹ رہا ہوں، کل اپنی گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ یہ ہیں ولایت الہی کے علم بردار۔ ایسا نہیں ہے کہ ولی کہہ دیا بس ولی نہیں، اقتدار بھی ہے، اختیار بھی ہے، علم بھی ہے، حلم بھی ہے، تدبر بھی ہے، شجاعت بھی ہے، وراثت میں سب کچھ ملا۔ نبی کی وراثت میں سب کچھ ملا، علی کی ولایت اللہ کی جانب سے سب کچھ عطا کر دیا، لیکن کسی بھی قوت کو، کسی بھی اختیار کو انہوں نے اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا، اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب ان کا نام آتا ہے
तो हमारी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। हम जब उनका नाम आता है तो हमारे दिल सजदे ताज़ीमी के लिए झुक जाते हैं। और क्यों ना झुके कि ये वो हस्तियां हैं कि इख्तियार और इक़्तिदार के बावजूद, कुदरत रखने के बावजूद भी उन्होंने अपने जिंदगी और अपनी जात के नफे के लिए कुछ नहीं किया। और यही वजह है कि जब हुसैन इब्ने अली मैदान करबला में शहादतें पेश कर रहे थे तो क्या ये नहीं इख्तियार रखते थे कि सकीना को 2 घूंट पानी पिला ठोकर मार के जमीन पर चश्मे को जारी करके बताया कि देखो हम वली अम्र हैं, अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है। हाँ ज़ादारान हुसैन, आपकी ज़हमतों को मैं तमाम कर रहा हूँ, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन। हम हुसैन का गम मनाते हैं, हुसैन का जिक्र करते हैं और दिल की गहराइयों से करते हैं। खुदावंद आलम हमारे इस तस्किरे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये मजलिसें इतनी आसानी से आबाद नहीं हुई हैं, ये आजादारियां इतनी आसानी से आबाद नहीं हुई हैं, और हम किसी को अपनी मजलिसों और आजादारी के आगे आंच भी नहीं आने देंगे। किसी को इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारी आजादारियों पर उंगली उठाए, वो हमारी मजलिसों पर उंगली उठाए। हमारे अज़ा के अपने अपने तरीके हैं। कोई हाथ का मातम करता है, कोई जंजीर का मातम करता है, कोई खाना का मातम करता है, कोई जुलूस निकालता है, कोई आग का मातम करता है, कोई ये सोचता है कि न जाने खैमे जब जले होंगे तो बीबियां कैसे आग पर चली होंगी। कोई ये नहीं जानता कि जब ताज़ियाने लगे होंगे और पुष्ट जख्मी हुई होगी तो किस तरह से लहू बहा होगा। हाँ ज़ादारों, आपको याद है ना कि जब रसूल इस्लाम जंग ओहद में उनके दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे तो हर आदमी अफसोस कर रहा था कि रसूल के दंदाने मुबारक शहीद हो गए, मगर रसूल का एक ऐसा भी चाहने वाला था जिसका नाम वैसे करनी था, जिसने रसूल की अभी सोहबत न पाई थी मगर सहाबी रसूल के दर्जे पर था। जब उसको ये इत्तला मिली कि रसूल के दंदाने मुबारक शहीद हो गए तो उसने अपने एक दांत को तोड़ दिया, दूसरे दांत को तोड़ा, तीसरे को तोड़ा, तमाम दांत तोड़ दिए, यही सोचकर न जाने कौन से रसूल के दांत जख्मी हुए, कौन सा दांत टूटा होगा, खुद को लहू लहान कर दिया। रसूल ने ये नहीं कहा कि वैसे करनी तुमने कैसी बिदात की, तुमने ये क्या बुरा अमल किया, नहीं, ये मोहब्बत के अंदाज है कि जिससे जितनी मोहब्बत होती है वो उतना ही तरीके से इजहार करता है। ये जरूरी नहीं है कि जंजीर का मातम करने वाले, कमा का मातम करने वाले इनको ये इहानत इस्लाम कर रहे हैं, नहीं, ये दीन की बुनियादों में अपना लहू डाल रहे हैं। इनके लहू की कीमत को जानो, इनके लहू की अहमियत को समझो। इसलिए कि ये आज आजादारियां जो बाकी हैं इन्हीं आजादारों से बाकी हैं, इन्हीं मातमदारों से बाकी हैं। आज अगर कोई आके ये कहे कि हुसैन हुसैन करने की जरूरत नहीं, चलो नमाज पढ़ते हैं, चलो फना काम करते हैं, नहीं, हुसैन है तो नमाज है, हुसैन है तो दीन है, हुसैन है तो सब कुछ है, हुसैन नहीं तो कुछ भी नहीं है। हम किसी को इस बात की इजाजत नहीं देंगे, हम किसी के जुबा खुबा से नहीं डरते, हम किसी के आने से नहीं डरते, हम इस बात से डरते हैं कि जनाब सैयदा नाराज ना हो जाएं, हम इस बात से डरते हैं। हमने सुना, हमने पढ़ा, आयतुल्लाह खुमैनी, आयतुल्लाह हुई से जब पूछा गया कि इनके बारे में आप बताइए तो सब ने यही कहा कि हमसे इस मामले में, अदादारी के मामले में कोई फतवा न लो, इसलिए कि हम डरते हैं शहजादी कानैन सैयदा से। हम ये नहीं चाहते कि कुछ कहे, ये तुम्हारे और बीबी के दरमियान का सिलसिला है, एक राबिता है, ये तुम्हारे और बीबी के दरमियान की बातें हैं, हम इसमें दखल नहीं देंगे। आज कैसे ये दीन के ठेकेदार, इस्लाम के ठेकेदार बनकर, कुरान के ठेकेदार बनकर हुसैन के जिक्र पर उंगली उठाते हैं और तंबीह करते हैं कि ऐसा करो, ऐसा न करो, इस तरह से अज़ादारी करो, इस तरह से अज़ादारी न करो। नहीं, हम
इस बात को तस्लीम करते हैं कि इहानत दीन का कोई काम नहीं होना चाहिए, दीन की कोई मजाक नहीं होनी चाहिए। मगर आज कोई नई बात नहीं हो रही। 1400 बरस से जंजीर का भी मातम हो रहा है, करा का भी मातम हो रहा है, आग का भी मातम हो रहा है। अरे हम तो कुछ भी नहीं करते, ये आजादारी किस तरह से बची है? जाके जरा देखो तो सही मुतवक्किल के जमाने में कि कोई था जो कहता कि नहीं, हुसैन की आजादारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी फर्जंद